گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا بھیڑ ان کے سامنے سے گزر جاتی تھی تو کوئی اسے دیکھتا نہیں تھا۔ مہاراج کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کچھ دن باتیں کریں گے پھر چپ ہو جائیں گے، اور مہاراج یہ بھی سوچیں کہ کس کی ہمت ہے جو آپ کے سامنے آ کر بات کرے گا۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 8۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اس کے دماغ پر تخت و تاج سوار تھا۔ اس نے اپنے وزیر برہمن سے کہا کہ بادشاہ اور راجہ کے اعمال رواج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قانون بھی بن جایا کرتے ہیں، چونکہ راجہ داہر ہر کسی کو خوش رکھنے کے اصول کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے 500 سردار وغیرہ کو دربار میں بلایا اور انہیں نجومیوں کی پیش گوئی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وزیر نے کیا مشورہ دیا ہے۔ نہیں مہاراج، ایک آواز سنائی دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مہاراج، ایک اور آواز سنائی دی۔ بہت بدنامی ہوگی مہاراج، کسی اور نے کہا۔ پھر سبھی بولنے لگے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے وزیر برہمن کے مشورے کی تائید کی ہو۔ سب اس کے خلاف بول رہے تھے۔ لیکن ہم نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ راجہ داہر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تم سب یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا راج کسی اور کے حوالے کر کے جنگل میں چلے جائیں اور باقی عمر بنواس میں گزار دیں۔ ہمارے راج میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی تکلیف بیان کرے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ راجہ داہر کی نظریں سب پر گھوم گئیں۔ کیا ہم نے تم میں سے کسی کو کبھی ناخوش کیا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ بولو، راجہ داہر نے رعب دار آواز میں کہا، ہم اپنی بہن کے ساتھ صرف بیاہ کریں گے، اسے بیوی نہیں بنائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے مہاراج، ایک آواز سنائی دی اور سب نے تائید میں بولنا شروع کر دیا۔ 2-3 دنوں بعد راجہ داہر نے اپنی بہن مائی رانی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک رسم تھی جو خاموشی سے ادا کی گئی۔ لوگوں میں اس شادی کے خلاف باتیں ہوئیں۔ جس نے سنا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن بہن کے ساتھ شادی کرنے والا اس ویس کا راجہ تھا۔ اس طرح میری شادی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ مائی رانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی راج سے محروم ہو جائے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ میرا خاوند میرے بھائی کو قتل کرا کے اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ معلوم تھا، مائی رانی نے جواب دیا، وہ بھی راجہ ہے۔ بھاٹیا نام کے ایک ریاست ہے اور اس کا راجہ ہے، اس کا نام سونہن رائے ہے۔ میں برہمناباد میں اپنے بھائی دہر سینا کے پاس تھی۔ اس نے مجھے اس بھائی راجہ داہر کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میری شادی فوراً بھاٹیا کے راجہ سونہن رائے کے ساتھ کر دی جائے۔ بھائی دہر سینا نے میرے ساتھ میرا جہیز بھی بھیجا تھا، جس میں 700 گھوڑے اور 500 ٹھاکر تھے اور ایک قلعہ بھی جہیز میں دیا جا رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کے بھائی دہر سینا کو پتہ چلا کہ داہر نے مائی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے داہر کو لکھا کہ وہ مائی رانی کو راجہ سونہن رائے کے حوالے کر دے۔ داہر نے جواب دیا کہ اس نے کس خطرے کے تحت اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بہن کو اس نے بہن ہی رکھا ہے، اسے عملاً بیوی نہیں بنایا۔ دہر سینا کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس نے فوج ساتھ لی اور راجہ داہر کی راجدھانی کو آ کر محاصرے میں لے لیا۔ راجہ داہر کے پاس زیادہ فوج تھی۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ محاصرہ توڑا جائے۔ اس حکم پر فوج باہر نکل آئی۔ دہر سینا نے دیکھا کہ اس کی فوج داہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تو اس نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعے سے باہر آ کر اس کی بات سنیں۔ راجہ داہر نے دہر سینا کو یہ پیغام بھیجا کہ تم میرے بھائی ہو، تم خود قلعے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس پیغام پر دہر سینا ہاتھی پر سوار ہو کر قلعے میں آیا اور راجہ داہر سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باہر چلے۔ راجہ داہر اسی ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ ہودے میں آگے دہر سینا آگے کو منہ کیے بیٹھا تھا۔ داہر پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا وزیر
ब्राह्मण साथ था, घोड़े पर जा रहा था। जब हाथी किले के दरवाजे पर पहुंचा तो ब्राह्मण को कुछ शक हुआ या उसे किसी से इशारा मिला। उसने राजा दाहिर को इशारा किया कि वो बाहर न जाए। दहर सीना तो आगे को देख रहा था। दाहिर हौदे में खड़ा हो गया और दरवाजे के ऊपर किसी चीज को पकड़कर लटक गया। हाथी बाहर निकल गया। दाहिर को ऊपर से उतारा गया और किले का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर जाकर दहर सीना ने हाथी रुकवाया। पीछे देखा तो दाहिर हौदे में नहीं था। तुमने हमें रोक लिया था, राजा दाहिर ने अपने वजीर से पूछा। आपका भाई आपको बाहर कत्ल करने के लिए ले जा रहा था, ब्राह्मण ने जवाब दिया। उसके तेवर बता रहे थे और मेरे भेजे हुए एक जासूस ने ऐन उस वक्त मुझे ये खबर दी थी जब आप हाथी पर सवार दरवाजे के करीब पहुंच गए थे। तारीखों में है कि दहर सीना ने दाहिर को वाकई कत्ल करने का इरादा कर रखा था। दहर सीना ने देखा कि दाहिर उसके हाथ से निकल गया है और उसकी फौज दाहिर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं, तो उसे बहुत सदमा हुआ। सदमे के अलावा गर्मी ज्यादा थी। दहर सीना को बुखार आ गया। उसके तमाम जिस्म पर छाले उठाए। वो 4 रोज बीमार रहकर वहीं किले के बाहर मर गया। ये वाकया 672 का है। ये वाकया 672 ईस्वी का है। उस वक्त दहर सीना की उम्र 30 साल थी। मैंने सुना है कि इस मुल्क में जिंदा लड़कियों की जान की कुर्बानी भी दी जाती थी। बिलाल बिन उस्मान ने कहा, तुमने ठीक सुना है। माई रानी ने कहा, अगर नजूमी या पंडित कह दें कि कोई आई हुई मुसीबत इंसानी जान की कुर्बानी से टलेगी तो किसी मौजू लड़की को पंडितों के हवाले कर दिया जाता है। ये रस्म एक खास तरीके से अदा की जाती है। हम उसे शिर्क और गुनाह कबीरा कहते हैं। बिलाल ने कहा, तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है जो अपने बंदों का खून बहाकर खुश होता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मेरे साथ मजहब की बात न करो। माई रानी ने कहा, मैं जब तुम्हारे पास आती हूँ तो मैं हिंदू नहीं होती और तुम्हें मुसलमान नहीं समझती। मैं एक औरत हूँ और तुम्हें एक मर्द समझकर आती हूँ। औरत उसी मर्द को अपने दिल में बसाती है जो उसके दिल को अच्छा लगता है। मैं रानी हूँ। मैं तुम्हें जंजीरों में बांधकर अपना गुलाम बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत की जंजीरों में बंधकर तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि मैं अपने खाविंद को क्यों धोखा दे रही हूँ और मैं उसे मोहब्बत के काबिल नहीं समझ रही। 6 साल बाद रमल के राजा ने राजा दाहिर के मुल्क पर हमला कर दिया और उसके कुछ इलाके पर कब्जा करके आगे बढ़ा। उसके साथ हाथी भी थे। ये सब नर हाथी थे। उन्हें बहुत ज्यादा और बड़ी कवी ग़िज़ा खिलाई जाती थी, इसलिए ये मस्ती में रहते थे। हमले के लिए उन हाथियों को शराब पिलाकर लाया गया था। हाथियों के साथ रमल के राजा की फौज थी। वो इतनी ज्यादा थी कि राजा दाहिर घबरा गया। उसकी फौज इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। राजा दाहिर ने अपने वजीर ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि वो क्या करे। मुकाबला करे महाराज, ब्राह्मण ने कहा। अपनी फौज थोड़ी है तो क्या हुआ, उस खजाने का मुंह खोलें जिसमें आपने दौलत के ढेर लगा रखे हैं। ये लोगों में तकसीम करें और उन्हें कहें कि दुश्मन के मुकाबले के लिए निकलें। बहादुरी से लड़ने वालों के लिए इनाम मुकर्रर करें, रियाया को लड़ने का तजुर्बा नहीं। राजा दाहिर ने कहा, अनाड़ी लोग दुश्मन के आगे ठहर नहीं सकेंगे, फिर दुश्मन के साथ सुलह कर लें। वजीर ब्राह्मण ने कहा, क्या इससे बेहतर मौत नहीं? वजीर ने कहा, हमारा दुश्मन सुलह की न जाने कितनी कीमत और न जाने कैसी कीमत मांग बैठे। सुलह का मतलब है हथियार डालना। मैं हथियार नहीं डालूंगा। फिर एक ही सूरत रह जाती है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ने अरब के जिन मुसलमानों को पनाह देकर अपने मुल्क में आबाद किया था उन्हें लड़ने पर राजी करें, लेकिन उनकी तादाद सिर्फ 500 है। राजा दाहिर ने कहा, शायद कुछ ज्यादा हो, इतनी थोड़ी तादाद में कुछ नहीं कर सकेंगे महाराज। ब्राह्मण ने कहा, अरबों को आप नहीं जानते। ये उस कौम के आदमी हैं जिसने फारसियों और रोमियों को शिकस्त पर शिकस्त देकर उनकी जंगी ताकत ख़त्म कर डाली है। ये लोग दिलेर भी हैं और बहुत थोड़ी तादाद भी फतह पाने का तजुर्बा रखते हैं।
चच नामा और तारीख मासूमी में लिखा है कि राजा दाहिर को ये मशवरा पसंद आया और ख़ुद उन अरब मुसलमानों के पास गया जिन्हें उसने अपने मुल्क में पनाह दी थी। उनकी तादाद 500 थी और ये सब अपने कबीलों के सरदार या सरदारों के बेटे थे। ये बागी हुए थे, फिर वहाँ से भागकर सिंध में आ गए थे। उनका सरदार या अमीर मोहम्मद अलाफ़ी था। बाज़ मौरख़ों ने उसका नाम मोहम्मद हारिस अलाफ़ी लिखा है। वो बनी उसामा का सरदार था और सिंध में आने वाले सरदारों ने उसे अमीर बना लिया था। अलाफ़ी कबीले के अब्दुल मुल्क बिन मरवान के दौर खिलाफत में मकरान के अमीर सईद बिन असलम कलाबी को कत्ल किया था। महाराज अलाफ़ी ने आगे बढ़कर दाहिर का इस्तकबाल किया और कहा, आपके आने में वो शान नहीं जिस शान से आप बाहर निकला करते हैं। आज मेरी शान को तुम्हारी तलवार कायम रखेगी। राजा दाहिर ने कहा, मैं एहसान जताने और एहसान का सिला लेने नहीं आया, मैं दोस्ती का हक लेने आया हूँ। अलाफ़ी ने उसे बिठाया और 3-4 सरकर्दा आदमियों को भी बुला लिया। कहो महाराज, अलाफ़ी ने पूछा, आज हमारी तलवार की क्या ज़रूरत पेश आई है? हम दोस्ती का हक अदा करेंगे। राजा दाहिर ने उसे बताया कि एक बहुत ताकतवर दुश्मन उस पर हमला करने आ रहा है और उस वक्त उसकी फ़ौज 10-12 मील दूर पड़ाव किए हुए है। खुदा की कसम, अरब के मुसलमान किसी का एहसान भूला नहीं करते। अलाफ़ी ने कहा, हम दोस्ती का हक अदा करेंगे। हक अदा ना हुआ तो जाने दे देंगे। फिर कोई तरकीब करो और मेरे राज को उस दुश्मन से बचाओ। दाहिर ने मायूस और हारे हुए लहजे में कहा, मुझे इत्तला मिली है कि दुश्मन के पास हाथी हैं जो बदमस्त हैं। उनकी अलगार को कोई फौज बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी चिंगार से ही फौज पर दहशत तारी हो जाती है। क्या आप लोग उन हाथियों से मुकाबले की कोई तरकीब सोच सकते हैं? ऐ सिंध के राजा, एक बूढ़े अरब सरदार ने कहा, आज से 40 साल पहले के दिन याद कर। तू उस वक्त छोटा होगा। फारस के आतिश परस्तों ने हमारे हाथों खाई हुई शिकस्तों से तंग आकर कादसिया के मैदान में हमसे फैसला कुन जंग लड़ने के लिए इतनी फौज उतारी थी जो शायद इससे पहले किसी लड़ाई में नहीं उतरी थी। आतिश परस्त हाथी लाए थे। हमारे लिए हाथी बिल्कुल नई और बहुत ही खौफनाक चीज़ थी। मैं उस वक्त जवान था और मैं उस मैदान में लड़ा था। ऐ सिंध के राजा, तू शायद जानता होगा कि शाह फारस को ये हाथी उस वक्त के सिंध के राजा ने दिए थे। ये हिंदुस्तान के जंगी हाथी थे। 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन उन हाथियों की चिंगाड़ें मुझे आज भी सुनाई दे रही हैं। उन हाथियों ने हमारी फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हमने हाथियों की सूंडें काट डाली थी। क्या ये काम आसान था? नहीं मेरे बुजुर्ग दोस्त, राजा दाहिर ने कहा, ये काम आसान नहीं था। मैं उस वक्त छोटा था। मुझे ज़रा बड़े होकर मालूम हुआ था कि मुसलमानों ने कादसिया की जंग में फारसियों को बहुत बुरी शिकस्त दी है और हाथियों ने जख्मी होकर अपनी फौज में भगदड़ मचा दी थी। जंग कादसिया 635 ईस्वी 41 हिजरी में लड़ी गई थी। उस वक्त शाह फारस यज़दगढ़ था। उसने मुख्तलिफ मुल्कों से फौजी मदद ये कहकर मांगी थी कि इस्लाम के सैलाब को रोका न गया तो कोई और मजहब जिंदा नहीं रहेगा और सब मुसलमानों के गुलाम होंगे। उसने सिंध के राजा से भी मदद मांगी थी। सिंध के राजा ने उसे अपनी फौज की कुछ नफरी दी थी और जो खतरनाक चीज़ दी वो हाथी था। मालूम नहीं सिंध से कितने हाथी शाह फारस को दिए गए थे। उनमें राजा का अपना सफ़ेद हाथी भी शामिल था, जो दरअसल सफ़ेद नहीं बल्कि सफ़ेदी माइल भूरा था। जंग कादसिया में उस हाथी पर फारस का मशहूर सालार रुस्तम सवार था। वो मुसलमानों के हाथों मारा गया था। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजा दाहिर ने कहा, हाथियों का मुकाबला तुम ही कर सकते हो। मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मेरी मदद करो।